Hello boys and students, this is Sheikh Ijaz. Today I have brought you a new lesson which is a poem by Robert Frost. Robert Frost is one of the most famous poems who has written many poems, and this is one of his most famous poems which is almost taught in all the schools of the world even today. इस पोएम को हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इसको हम मतलब इसकी तशरीह करने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले इसको हम सुनेंगे किसी और की आवाज में. How beautifully he has sung this beautiful poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. अच्छा बॉयज, दिस इज स्टैंजा नंबर 1. ये स्टैंजा हम इसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Whose woods these are, I think I know. Whose woods are these are, I think I know. जिसका ये जंगल है, I think मेरे ख्याल से मैं उसको जानता हूँ. शायद यहाँ पर कहता है जिस शख्स का ये जंगल है उसे शायद मैं जानता हूँ. Woods क्या होता है? An area of land covered with thick growth of trees. एक मतलब स्मॉल सा एरिया होता है जहाँ पर इर्द गिर्द उसके अंदर बहुत ज्यादा दरख्त पौधे लगे होते हैं. तो पहली लाइन में कहता है कि whose woods these are, I think I know. ये जिसका जंगल है उस शख्स को मैं जानता हूँ. His house is in the village though. अगरचे कि उसका घर करीब ही के विलेज में है, जो गांव में है. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वो मुझे यहाँ पर ठहरे हुए काम करते हुए नहीं देख पाएगा और ना ही देख पाएगा कि मैं उसकी जगह पर या उसकी वुड्स में, उसकी वुडलैंड में जो कि स्नो से भरी हुई है, एंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ. And he will not have the chance to see his beautiful woods and me, that I am standing or staying there and enjoying the most beautiful scene of his woods. The speaker thinks about who owns the woods that is passing through. Speaker सोचता है कि who owns the woods, कि जंगल किसका है, that he is passing through, जहाँ से वो गुजर रहा है. And is fairly sure of knowing the landowner. उसको यकीनन पता है कि इस जगह का मालिक कौन है. However, the owner's home is far away in the village, and thus he is physically incapable of seeing the speaker. Pause to watch the snow fall in the forest. ठीक है बेटा, ये फर्स्ट स्टैंजा है, वेरी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. there is nothing difficult in it. So फर्दर डिस्कस करेंगे. ये सीन देखें, ब्यूटीफुल सीन ऑफ woods. You can see that this the thick growth of trees and plants. ठीक है, this indicates the village where the owner of this woodland lives. Stanza number 2. My little hearts must think it queer. Queer होता है अजीब, unusual. मेरा छोटा सा घोड़ा इस चीज को बड़ा ही अजीब समझ रहा होगा. To stop without a farmhouse near,
कि उनको उनका वहां पर रुकना बगैर किसी फार्म हाउस के जो उनके कोई करीब नहीं है, यानी वहां पर कोई करीब फार्म हाउस नहीं है और वहां पर वो रुक रहे हैं, उसको घोड़े को ये अजीब लग रहा है। ठीक है, पोएट जो है वो इमेजिन कर रहा है कि उसका घोड़ा शायद ये सोच रहा हो कि हमारा यहाँ पर रुकना विदाउट ए फार्म हाउस नियर इज वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, शायद घोड़ा मतलब ये समझ रहा हो यहाँ पर कोई डेंजर है, यहाँ पर विदाउट एनी मकसद या एनी पर्पस दे आर स्टेइंग देयर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी जमी हुई नदी और उस वुडलैंड या जंगल के दरमियान में द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे यानी अंधेरी तरीन शाम भी है। शायद 21 या 22 दिसंबर जब सूरज जमीन से बहुत दूर होता है, वो शाम बहुत ही अंधेरी होती है उस वक्त। I hope you are getting this. The speaker thinks his or her horse must find it strange to stop so far from any signs of civilization. जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, वहाँ पर रुकना बड़ा अजीब है उनका। Indeed, they are surrounded only by the forest. यकीनन वो सिर्फ जंगल से ही घिरे हुए हैं, and a frozen lake, एक जमी हुई नदी से, on the longest night of the year, साल की उस लंबी तरीन रात में। This shows the horse, this shows the stream, frozen lake. This is between the woods and the lake. This picture shows the darkest evening of the year. Your words meaning है queer, farmhouse, frozen lake, darkest meaning. अब you are getting this. Over to the next stanza. Stanza number 3 में देखें, he gives his harness bells a shake. harness bells क्या होती हैं? जैसे ये आप देख रहे हैं घोड़े के ऊपर ये बेल्ट्स लगी हुई हैं, इनके साथ ये बेल्स लगी हुई हैं। घोड़े के ऊपर जो साजो सामान लदा होता है वो इससे बंधा होता है, तो इसको हार्नेस कहते हैं सब चीजों को। तो ये ऊपर बेल्स लगी हुई हैं। He gives his harness bells a shake. यानी घोड़ा अपनी हार्नेस बेल्स को हिलाता है, मूव करता है। जैसे आपने देखा हो घोड़े कैसे अपना सर हिलाते हैं। To ask if there is some mistake, ये कंफर्म करने के लिए अपने मास्टर से कि वो किसी गलती तो नहीं कर रहा कोई, कि वहां पर उनका वहां पर रुकना कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वहां पर इर्द गिर्द कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई खाने पीने की जगह नहीं है, कोई सराय नहीं है, जैसे कि पुराने जमाने में होता था। जो मुसाफिर होते थे वो इन्स में या फार्म हाउसेज में रास्ते में रुकते थे। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. वहां पर इतनी खामोशी थी कि the only other sounds, और इन बेल्स के अलावा दूसरी जो सिर्फ आवाज थी वो स्वीप थी। स्वीप है हवा के चलने की आवाज। ऑफ इजी विंड यानी सॉफ्ट विंड, इजी विंड वेरी सॉफ्ट हवा, एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ के जो बर्फबारी होती है, बर्फ के जो ज़रात ऊपर से गिरते हैं। डाउनी का मतलब नरम मुलायम, फ्लेक बर्फ के ज़रात जो ऊपर से गिरते हैं उनकी आवाज। असल में ये चीजें सजेस्ट कर रही हैं कि वहां पर इतनी खामोशी थी कि जो फ्लेक्स जो इन बेल्स की आवाज के अलावा हल्की हल्की हवा की चलने की आवाज थी, या जो फ्लेक थे बर्फबारी हो रही थी उनकी आवाज थी। और ये चीज सजेस्ट करी है कि बहुत ज्यादा सीरेनिटी थी, बहुत ज्यादा साइलेंस थी वहां पर, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। The horse shakes the bells on its harness. अपनी हार्नेस पे जो बेल्स होते हैं उनको शेक करता है, asking if the speaker has made a mistake. गोया कि वो अपने मालिक से पूछ रहा हो कि आया कि उसकी गलती तो नहीं by stopping there, वहां पर रुकने की। The only other sound besides the ringing of these bells, यानी इन बेल के बजने के अलावा दूसरी जो आवाज थी is that of the wind, हवा की चलने की, and falling snowflakes, और गिरती हुई बर्फबारी की, which the speaker likens to the feathers of goose down, जिसको पोएट बहुत ही पसंद करता है, जैसे कि कोई किसी हंस के पर या पंख नीचे जमीन पर गिर रहे हों। ये वर्ड्स के मीनिंग है हार्नेस, ये टैकल, इक्विपमेंट, गियर, ब्राइडल, शेक, जिंगल, जोल्ट, जर्क, रैटल, स्वीप, इजी डाउन, ब्रेक। ये वर्ड्स मीनिंग है। लेट्स गो ओवर टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं कैसे बर्फबारी हो रही है, नीचे गिर रही है।
ये स्टैंजा सबसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और समझने वाला है. ये शो कर रहा है डार्केस्ट इवनिंग, डीप एंड डार्क फॉरेस्ट. दिस इज ब्यूटीफुल scene. The poet has started his journey back to his work. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये stanza उसने ये दो लाइनें उसने repeat की हैं. The woods are lovely, dark and deep. poet कहता है कि जो जंगल है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पिच ब्लैक यानी अंधेरा है वहाँ पर, and deep और गहरा भी है. But I have promises to keep, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं, मुझे कुछ वादे फुलफिल करने हैं, मुकम्मल करने हैं. यानी जंगल की खूबसूरती से अब हटकर अब उसको अपने वादे याद आ जाते हैं. जैसे कि शायद उसको पीछे उसने जो घोड़े ने जो उसको बेल बजाई थी, जो हॉर्नेस बेल बजाई थी, वो शायद ख्वाबों की दुनिया से या जो इमेजिनेशन से, फितरत की खूबसूरती के जो ख्वाब था उससे बाहर आकर अब रियलिटी की तरफ आ जाता है. तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे कुछ वादे निभाने हैं. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और मीलों का सफर करना है सोने से पहले, और फिर मीलों का सफर करना है सोने से पहले. सोने से पहले को दो तीन इसकी इंटरप्रिटेशन है. कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये मौत की बात कर रहा है, या लॉन्ग स्लीप की बात कर रहा है, या कहता है कि जो पोएट है वो कह रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा काम करने के बाद वो लंबा वो करेगा, रेस्ट करेगा. तो लिहाजा ये जो लाइनें 3-4 चीज़ें सजेस्ट करती हैं. पोएट ने खुद हिमसेल्फ कुछ नहीं कहा इसके बारे में, लेकिन क्रिटिक्स इस चीज़ के बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो लिहाजा उसने दुनियादारी के बहुत से ऐसे वादे हैं जो पूरे करने हैं, और वो ख्वाबों की दुनिया से निकलकर, यानी खूबसूरती की दुनिया से निकलकर, जो खूबसूरती या जो नेचर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी उससे निकलकर अब वो रियलिटी की तरफ आ जाता है. उसको अपने वादे याद आ जाते हैं. उनको पूरे करने के लिए उसे अपना सफर दोबारा जारी करता है और वुड्स को छोड़कर वो वहां से चला जाता है. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी ये इंटरप्रिटेशन. आप पढ़ सकते हैं. Here in the last stanza the narrator describes the woods using 3 adjectives. 3 adjectives इस्तेमाल करके वुड्स को बयान करता है. Lovely, dark and deep. ठीक है. This indicates that he is enjoying the scene and wants to do so for long. यानी उसको सीन बहुत पसंद आया और काफी देर तक एंजॉय करना चाहता है. But he has other responsibilities in life. लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं. He has to go a long way before he sleeps. उसने एक लंबा सफर करना है सोने से पहले या मरने से पहले. So he cannot get the enjoyment for long. तो लिहाजा ज्यादा देर तक वो एंजॉय नहीं करता. He has to move on. उसको अपना सफर जारी रखना है. And the important thing is here that the poet repeats the last line to attract the attention of the readers. Readers की attention को attract करने के लिए 2 लाइनें repeat करता है. In this very last line lies the technical interpretation. यानी इन 2 लाइनों में जो लामती जो सोच है वो पड़ी हुई है. Here sleep may refers to death. हो सकता है वो sleep है वो मौत की बात कर रहा हो. We have other things to do in our short लाइफ स्पान. अपनी मुख्तसर जिंदगी में हमें और भी काफी चीजें ऐसी करनी है. सो वी हैव टू मूव ऑन. तो लिहाजा हमें अपना सफर जारी रखना है. ठीक है जी. एक डिफरेंट वुड्स की भी इंटरप्रिटेशन है. वो सजेस्ट करता है कि वो डिस्ट्रैक्शन है एंड टेम्पटेशंस है इन दी जर्नी ऑफ आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में हमें मतलब कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमारी तवज्जो हटाती हैं या हमें लालच दिलाती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं. तो पोएट कहता है, शायद कहना चाहता है कि हमें उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए, उन अट्रैक्शन की तरफ, बल्कि हमें फोकस करना चाहिए अपने सफ़र की तरफ. जो हमारा सफ़र है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरी करनी होगी और अपना सफ़र जारी रखना होगा. और ये जो खूबसूरती है, जो नेचर है, फितरत है, ये बीचिंग तो ज़रूर है, फैसिनेटिंग भी है, लेकिन दिस इज़ शॉर्ट लिव्ड. ठीक है जी. I hope you have understood this poem very nicely. I need you to just repeat this video time and again and listen it time and again so that you can understand its real meaning. तो इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस, समरी और दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. I hope you have understood. All the best and see you in my next video. Allah Hafiz.